امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیوس ورلڈ اکنامک فورم میں خطاب کرتے ہوئے کہا، حلف اٹھانے کے بعد امریکہ میں عقل کی انقلاب بنیاد رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی کمپنیاں امریکہ میں مصنوعات بنائیں یا پھر ٹیرف کا سامنا کریں۔ صدر ٹرمپ نے کاروباری رہنماؤں کو پیغام دیا کہ امریکہ میں مصنوعات تیار کریں، سب سے کم ٹیکس دیں۔ انہوں نے کہا، یورپی یونین سے تجارت میں خسارہ ہو رہا ہے، ٹیرف دگنا کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط، دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ وزیراعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد کا خط لکھا۔ اسحاق ڈار نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی۔ لاس اینجلس کے پہاڑوں کے شمال میں نئی آگ بھڑک اٹھی، 50,000 افراد کو انخلاء کا حکم، 6 گھنٹے کے دوران 9,400 ایکڑ رقبہ خاکستر۔ کیلیفورنیا میں آگ کے باعث آسمان زرد، 2 مقامات پر آگ تیسرے ہفتے بھی بجھائی نہیں جا سکی۔ متاثرہ علاقوں میں تاحال ریڈ فلیگ وارننگ لاگو، 4,000 سے زائد عملہ آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف۔ آگ کے باعث اب تک 28 افراد ہلاک، 16,000 سے زائد عمارتیں تباہ۔ خان صاحب نے بڑا دو ٹوک آج اعلان کر لیا ہے کہ آج تک ہم نے حکومت کو اس سے پہلے ٹائم دے دیا تھا، 7 دن کا ہم نے ٹائم دے دیا تھا۔ یہ خان صاحب نے واضح کر دیا تھا کہ اگر کمیشن کا اعلان اسی دوران نہیں ہوتا تو ہمارے مزید راؤنڈز مذاکرات کے نہیں چلیں گے، لہٰذا خان صاحب نے آج مذاکرات کال اپ کر لیے۔ 7 دن کا وقت ختم، بانی پی ٹی آئی کا حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو، کہتے حکومت کو 7 روز میں کمیشن بنانا تھا، آج تک نہیں بنایا گیا، ہم آئین اور قانون کے تحت اپنی کوششیں جاری رکھیں گے، بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں گے، آزاد عدلیہ اور 26ویں ترمیم کے خلاف کوشش کریں گے۔ مذاکرات کا یہ عمل ان کی پیش رفت پہ شروع ہوا تھا۔ ہم تو 28 دن کی تاریخ دے چکے ہیں اسپیکر صاحب کو کہ جی آپ اجلاس بلائیں، ہم تمام ان کے مطالبات کے بارے میں اپنے اپنے موقف لے کے آئیں گے، صرف 5 دن مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ ہماری اپیل ہوگی کہ وہ اس پہ ضرور غور کریں اور اس عمل کو نہ چھوڑیں۔ ہماری اپیل ہے پی ٹی آئی مذاکرات کا عمل نہ چھوڑے، مذاکرات ختم کرنے کا اعلان افسوسناک ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں، اپوزیشن کے مطالبات پر سنجیدگی سے مشاورت کی گئی، مذاکراتی کمیٹی میں 7 جماعتوں کی نمائندگی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے، پی ٹی آئی والے اپنے لیڈر سمیت کسی سے بھی مخلص نہیں، جوڈیشل کمیشن کے قیام کو جواز بنا کر مذاکرات ختم کیے گئے جو مناسب نہیں۔ پی ٹی آئی والوں نے اعتراف جرم کیا ہے مگر اسے گمراہی پر ڈال دیا ہے۔ یہ کسی بات میں بھی مخلص نہیں، یہ میرا خیال ہے اپنے لیڈر سے بھی مخلص نہیں ہے۔ یہ لوگ بات کر رہے ہیں، یہاں اندر بھی شور مچاتے ہیں، لیکن یہ مذاکرات کا ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن کا ایک ایکسکیوز بنا کے انہوں نے مذاکرات کا خاتمہ کیا ہے۔ پہلے ہی بتا دیا تھا حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات ختم ہو جائیں گے، یہ مذاکرات صرف مذاق تھے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کا ہدف ایک تھا، بانی جیل میں رہے۔ فیصل بابدہ کا ٹویٹ لکھا، نون لیگ حکومت کی ضمانتی پی ٹی آئی ہے، ان کے ٹرمپ کارڈ کی ہوا نکل گئی، سب ایک سمجھوتے کے تحت ہو رہا ہے۔ I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. Crimes Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. صحافیوں کا احتجاج بیکار، حکومت کا بڑا اقدام۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 قومی اسمبلی سے منظور، وفاقی وزیر رانا تنویر نے بل پیش کیا۔ بل کے خلاف صحافیوں کا پریس گیلری سے واک آؤٹ، حکومت کی کسی بھی اتحادی جماعت نے بل کی مخالفت نہیں کی، اپوزیشن کی جانب سے بل پیش کیے جانے سے قبل ہی واک آؤٹ کیا جا چکا تھا۔
हुकूमत ने PECA कानून में मुतादिद तरमीम तजवीज़ की हैं। मकसद गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करना, जाली या गलत मालूमात फैलाने जैसे जराइम के लिए सज़ाओं में इजाफा करना, साइबर क्राइम की तहकीकात और कानूनी चाराजोई के मकसद से मुतालिक एक नई खुसूसी तहकीकाती एजेंसी कायम करना शामिल। PICA एक्ट के तहत फेक न्यूज़ पर 3 साल सज़ा और 20 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बिल को सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम करार दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी, प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी और जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी प्रोटेक्शन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है ना। इसमें कहाँ लिखा है कि वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ लॉ बना है? डिजिटल मीडिया के ऊपर क्या वजह है कि वाजिबुल कत्ल करार दें, किसी पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाएं, किसी को कहें कि इसका घर तोड़ दो, आग लगा दो, कोई अथॉरिटी उसका नोटिस नहीं ले सकती। ये जो बिल आया है ये डिजिटल मीडिया पे आया है, ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट की स्पेस बढ़ाने के लिए आया। इसमें कहीं वर्किंग जर्नलिस्ट को टारगेट करने के हवाले से कोई शिक मौजूद नहीं। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने PICA एक्ट में तरामीम को मुस्तरद कर दिया। जॉइंट एक्शन कमेटी में PFUJ, CPNE और PBA शामिल। एलामिया में जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि हुकूमत ने सहाफ़ती तंजीमों से कोई मुशावरत नहीं की। हुकूमत ने तरमीम से कबल कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत के बगैर हुकूमत PICA एक्ट में तरमीम का बिल पास ना करे। PFUJ के सदर कहते हैं बिल के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का फैसला कर लिया है। 5 स्टेक होल्डर की एक्शन कमेटी है और इन 5 स्टेक होल्डर में से किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। इस बिल पर कोई मुशावरत नहीं की गई। पहली तो इसको मुस्तरद करने की वजह यह है कि हम इसको टोटल रिजेक्ट हमने कर दिया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इसके खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का भी फैसला कर लिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने PICA कवानीन को मुस्तरद कर दिया। आज सहाफ़ियों के साथ सेनेट इजलास से एहतजाजन वॉकआउट करने का ऐलान। शिबली फराज ने कहा सेनेट में अपोजिशन अपनी एहतजाजी तकरीर के बाद ऐवान से वॉकआउट करेगी। मुल्क के मजदूरों को वो हुकूक दिए गए जो पूरी दुनिया मानता है कि आपका हक है। कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जहां हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। अब इलेक्शंस करे ना करे, आपका वज़ीर आज़म हो, आपका सदर हो, आपका बादशाह हो, आपका अमीर अल मोमिनीन हो, वो निज़ाम अपने अवाम की मर्जी पे। जब एक तरफा पॉलिसी और फैसले किए जाते हैं तो नुकसान होता है। कोई भी हुकूमत आवाम की मर्जी के बगैर नहीं चल सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले कई बार हुकूमत बिला वजह अपने लिए मसाइल खुद बना लेती है। हम हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते। 18वीं तरमीम इत्तेफाक राय से की गई, आज कोई इसे तब्दील नहीं कर सकता। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मुश्तरका इजलास तलब किया। हुकूमत ज़ेर-ए-इल्तिवा बिल्स कानून साजी के लिए पेश करेगी। मुश्तरका इजलास के बायस सेनेट का इजलास भी रीशेड्यूल। सेनेट इजलास आज दोपहर 2:30 बजे होगा। कंट्री प्रोग्राम जो 10 साल के ऊपर मुफीद है, 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी तालीम के मैदान में, सेहत के शोबे में और जो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में आफत 2022 में पाकिस्तान में आई थी जिसने बहुत तबाही मचाई थी, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को मुख्तलिफ औकात में सपोर्ट करता है। बैंक ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की मदद की। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क प्रोग्राम 10 साल के लिए है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर खर्च करेगा। शराकतदारी फ्रेमवर्क से IT के शोबों में तरक्की होगी।
पाक बहरिया ने 11वीं बार टास्क फोर्स 151 की क़यादत संभाल ली। ISPR के मुताबिक कमान की तब्दीली की तकरीब कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हेडक्वार्टर्स बहरीन में हुई। पाक बहरिया के कॉमोडोर सुहेल अहमद अज़मी कमांडिंग टास्क फोर्स के नए कमांडर तैनात। कॉमोडोर सुहेल अहमद अज़मी ने कहा कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया दीगर ममालिक की बहरिया अफवाज के साथ मिलकर काम करती रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़ोब में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 6 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक खारजी के ग्रुप ने पाक अफगान सरहद पर दरानदाजी की कोशिश की। दहशत गर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। न्यू कराची में 7 साला सारिम के कत्ल की तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुकाम ने 2 मजीद अफराद को हिरासत में ले लिया। केस में जेर हिरासत मुल्जिमान की तादाद 9 हो गई। पुलिस को जेर हिरासत मुल्जिमान की DNA रिपोर्ट का इंतजार। कराची में जराइम पेशा अनासिर सरगर्म। 5 स्टार चौरंगी नादरा ऑफिस के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जख्मी मुल्जिम दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गया। गुलशन हरीद में मुल्जिमान 95 लाख से जायद मालियत की रकम और सोना लूट कर फरार। वारदात का मुकदमा स्टील टाउन थाने में दर्ज। इस्लामाबाद में भी डकैती की वारदातों में इजाफा। थाना धनियाल की हदूद में डाकुओं ने खवातीन से गन पॉइंट पर तलाई जेवरात लूट लिए। वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज को मौसूल। कोयटा में कुरान पाक की चोरी का अफसोसनाक वाकया। नामालूम अफराद जबल नूर अल कुरान के कदीम नुस्खे चुरा कर ले गए। नामालूम अफराद ने अलमारियों के शीशे तोड़कर कुरान पाक चोरी किए। सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कैमरे बिजली की लोड शेडिंग के बायस बंद थे। चोरी का मुकदमा इंचार्ज की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। कराची में मॉनसून से पहले नालों में कचरा फेंकने पर दफा 144 नाफिज। 2 माह के लिए कचरा और मलबा फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर सेक्शन 188 के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेविस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में खिताब करते हुए कहा, हल्फ उठाने के बाद अमरीका में अकल की इनकलाब बुनियाद रख दी। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की कंपनियां अमरीका में मसनूआत बनाएं या फिर टैरिफ का सामना करें। सदर ट्रंप ने कारोबारी रहनुमाओं को पैगाम दिया कि अमरीका में मसनूआत तैयार करें, सबसे कम टैक्स दें। उन्होंने कहा, यूरोपीय यूनियन से तिजारत में खसारा हो रहा है, टैरिफ दुगना करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद का खत लिखा। इसाकदार ने भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। लॉस एंजलिस के पहाड़ों के शुमाल में नई आग भड़क उठी। 50,000 अफराद को इनखला का हुक्म। 6 घंटे के दौरान 9,400 एकड़ रकबा खाकस्तर। कैलिफोर्निया में आग के बाइस आसमान जर्द। 2 मुकामात पर आग तीसरे हफ्ते भी बुझाई नहीं जा सकी। मुतासरा इलाकों में ताहाल रेड फ्लैग वार्निंग लागू। 4,000 से जायद अमला आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। आग के बाइस अब तक 28 अफराद हलाक, 16,000 से जायद इमारतें तबाह। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद नज़ारे हसीन हो गए। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। लारी टनल के अतराफ भी बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। नारान, काकान, शुगरान, मालम चब्बा, कालाम, बादी लिपा और नीलम वैली में बर्फबारी से पहाड़ों के दिलकश मनाजिर मजीद निखर गए। डेरा बुगटी में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा। क़िलात में आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। हर तरफ हसीन मनाजिर नजर आने लगे। सयाहती मकामात पर सयाहों ने भी डेरे डाल लिए। कराची वाले भी हो जाएं होशियार, ठंड के आज से बढ़ जाएंगे वार। महकमे मौसमियात ने सर्दी की शिद्दत में इजाफे की नवीद सुना दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि सर्दी की हालिया लहर जनवरी के इख्तिताम तक जारी रहेगी। हफ्ते और इतवार को शहर में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। पारा सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड किया जाने का इम्कान है।
اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ ہفتے کو شروع ہوگا. دونوں ٹیمیں ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی. اس سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل. قومی ٹیم ویسٹ انڈیز کو وائٹ واش کرنے کے لیے پرعزم.